Hello everyone, I'm Jitendra Singh, co founder and director of Look Studio. We are specialized in hair transplant and hair restoration treatments. We have 12 centers across India, Dubai, and Nepal. And after successfully treating more than 20,000 clients in last 8 years, we understood that there are lots of confusion, doubts and myths about hair fall and hair transplant treatments. In order to address these issues, we have decided to create a hair transplant knowledge series through which we will be addressing all these concerns in detail. Welcome to the very first episode of the series. In this first episode, we are going to cover the basic topic of why hair loss happens. What are the scientific reasons behind the hair fall? People do suffer from hair fall. They have a lot of question in their mind. They look for a lot of treatments, but they're not aware of the real reason behind their hair fall. Today we have Dr. Monis Ali, who is the medical director at Look Studio. With more than a decade of experience, he brings in a lot of knowledge about hair transplant and hair restoration. So, welcome to the show, Dr. Monish. Thank you so much, Jeet. It's an absolute pleasure to be here and sharing our knowledge with our viewers. And as you said rightly, before we plan any kind of treatment for the patients, it is very important for both of us, for the patient as well as the doctor, to understand what is the cause of hair fall, why he is facing this problem, and then the treatment progresses. Yes. And if I tell you the cause of hair fall, so 80 to 85% people face hair fall problem because of a condition known as male pattern baldness, or we call it as an androgenetic alopecia. So this is a hereditary or a genetic cause, and by that I mean कि जब हम पैदा होते हैं वो फैक्टर ऑलरेडी आ जाता है, एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द फ्यूचर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इनिशिएट होती है. सो बाय एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आई मीन कि देर आर सर्टेन एंड्रोजेंस इन द बॉडी. टू बी प्रिसाइसली आई विल नेम अ हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ हेयर फॉल. अब आपने देखा होगा मेल पैटर्न बाल्डनेस एक टिपिकल पैटर्न होता है जहाँ पेशेंट्स का हेयर फॉल स्टार्ट होता है उनके टेम्पल से, देन ग्रेजुअली इट गोज ऑन टू अफेक्ट देयर क्राउन, एंड स्लोली वो थिनिंग बढ़ती रहती है, एंड इवेंचुअली दिस एंटायर टॉप पोर्शन ऑफ द हेड इज लॉस्ट. सो दिस इज वाई वी कॉल इट एज अ मेल पैटर्न बाल्डनेस. अब DHT क्या करता है, द हार्मोन विच आई जस्ट नेम, इट अटैक्स द हेयर फॉलिकल्स. सो हेयर का एक पोर्शन होता है जो फॉलिकल बोलते हैं विच इज इनसाइड योर स्किन. सो वहाँ जाके देर आर सर्टेन सीरीज ऑफ रिएक्शंस जिससे इवेंचुअली द फॉलिकल स्टार्ट्स गेटिंग थिन, वो वीक होने लग जाता है. वी कॉल इट एज श्रिंकेज ऑफ फॉलिकल. इवेंचुअली इसीलिए यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि इंडिविजुअल का हेयर पहले थिन होता है, इट डजेंट फॉल ऑफ डायरेक्टली. पहले थिनिंग होती है एंड देन ग्रेजुअली वो फॉल ऑफ हो जाता है. सो दिस इज हाउ मेल पैटर्न बाल्डनेस विल प्रोग्रेस. So androgenetic alopecia is the main root cause in 80 to 85% of males. Even in females, we call it as a female pattern baldness. Jahan same, there will be thinning on top of the head and there is widening of the partition. So androgenetic alopecia comprises of 85%, 80 to 85% of baldness. Second जो एक फैक्टर जो होता है इसमें बहुत क्रूशियल वो होता है स्ट्रेस. सो स्ट्रेस especially during the last 5-6 years of practice we have noticed that people who are under continuous stress could be of any reason. It could be because of work pressure, because of family, any related issues. Stress is a precursor of hair fall. हमने कई बार देखा भी होगा when we have certain moments in our lifestyle के कुछ ऐसा चीज़ हो गई जिससे हमारा स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाता है, सो ऑटोमेटिकली विल सी के हेयर फॉल भी बढ़ जाता है. So stress again is a very important precursor, a main factor behind this. So these are certain causes. There could be some other causes like deficiencies. There could be some medical issues also. So as you said कि ये टॉप एरिया ही लोगों का जाता है जेनेटिकली, और आपने दो रीज़न पॉइंट आउट किए यहाँ पे मेजर, हार्मोन एंड जीन्स. हार्मोनल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड जेनेटिकली वी गेट द बाल्डनेस. ठीक है, तो सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया क्यों जाता है मेरा? क्योंकि पेशेंट्स का जनरली ये क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरा बैक ऑफ द हेड, मेरा साइड, एवरीथिंग इज़ फाइन, बियर्ड, मुस्टैश, बॉडी हेयर, ये हेयर हैम्पर नहीं होते हैं, सिर्फ टॉप ऑफ द हेड हैम्पर होता है. कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे, कोई साइंटिफिक रीज़न है तो प्लीज़ पुट अ लाइट ऑन इट. बिल्कुल. सो एज आई मैंशन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज द मेन कॉज फैक्टर फॉर हेयर फॉल.
लेकिन जो हमारे पीछे एंड साइड के हेयर होते हैं, इट हैज़ बीन शोड इन न्यूमरस स्टडीज वी हैव सीन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि दे आर रेजिस्टेंट टू DHT हार्मोन. ओके सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊंगा कि सिर्फ ये पोर्शन के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू DHT. Back and side portions are DHT resistant. That is why you will see a person who even reaches to age of 65, 70, 75. He might have lost everything on this portion, but back and side hair remain as it is. So Okay. technically we call them as DHT resistant or permanent zones. So जब हम फ्यूचर में ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, so I'll come to this point कि इसीलिए इसी को क्यों डोनर माना जाता है. ओके सो कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है सर कि 3 ब्रदर है राइट फैमिली में और एक बंदे को बाल्डनेस है, बाकी 2 को नहीं है. सो पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि जेनेटिकली मुझे बाल्डनेस हो रहा है बट मेरे जो ब्रदर हैं सिबलिंग्स हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, तो जेनेटिकली उनको भी इनहेरिटेंस होनी चाहिए उस चीज़ की, तो उनको क्यों नहीं है? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? सी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर एक फैमिली में 3 भाई हैं तो तीनों को वो जीन्स इनहेरिट होंगे. हम मेडिकली उसको कई बार लक भी बोलते हैं कि यार यू हैड अ गुड लक, यू डिडंट गेट दैट जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. बट फैक्टर जेनेटिक का जहाँ हम बात करेंगे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तीनों भाइयों या सब सिबलिंग्स को वो जीन्स इनहेरिट होंगी. हाँ, जिसको होंगी, अगेन बहुत कॉमन डाउट होता है, पेशेंट्स पूछते हैं कि ये फादर साइड से आया कि मदर साइड से, कि खाली फादर पैटर्नल साइड से आता है. इनफैक्ट आई कुड टेल यू getting the genes from your maternal side is more common and it is more you can say precursor to hair fall in the future. तो जो हमारी मम्मी की तरफ से होते हैं, मामा हुए, उनके मॉम डैड हुए, वहाँ से जीन्स ऑफ हेयर फॉल की जीन्स आना, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का कॉज फैक्टर आना बहुत कॉमन होता है. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर हम 3 सिबलिंग्स है तो तीनों को वो इनहेरिट होगा. कई बार ये भी होता है कि फैमिली में इट डजंट रन. सो एज आई टोल्ड यू, हेरिडिटी इज़ वन ऑफ द main factor for hair fall, but it is not the only factor for hair fall. There are certain other reasons as well. ओके सो आप कह रहे हो कि अगर 3 ब्रदर हैं उनके फादर को बाल्डनेस है तो एक को जीन फादर की साइड से आए तो वो बाल्ड हो रहा है, और बाकी जो 2 सिबलिंग्स हैं दे माइट हैव गॉट जीन्स फ्रॉम मदर साइड मे बी एंड देयर इज नो बाल्डनेस ओवर देयर एंड दे हैव नॉट इनहेरिटेड the same gene for the hair fall. It can, yes, it can, and it can happen vice versa also कि किसी को मदर की तरफ से वो आया है एंड मदर हैड अ हिस्ट्री ऑफ हेयर फॉल इन हर फैमिली एंड फादर को नहीं था. सो इट इज प्योर लक. ओके गॉट इट. सो अभी एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लाइक सम पीपल हैव दीज डाउट्स कि मैं कॉलेज टाइम में बहुत जेल लगाता था, स्ट्रेटनिंग करता था, या एक्सपेरिमेंट्स ऑन द हेयर एंड दैट माइट हैव लेड टू द हेयर फॉल एंड बाल्डनेस. हाउ मच your these environmental factors like water and all these things, experimenting on your hair, trying different products, ये कितना मैटर करता है और हैम्पर करता है हेयर फॉल को और इट लीड्स टू दी बाल्डनेस, ये कितना मैटर करता है? सी जहाँ तक हम बोलेंगे यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, सो आजकल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ये बहुत कॉमन डाउट होता है व्हेन दे कम एंड सी अस कि मैं जेल बहुत लगाता हूँ या मैं स्ट्रेटनिंग किया. इट विल ग्रेजुअली वीकन योर हेयर. आई वुड नॉट से कि वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर होगा हेयर फॉल का, बट जब आपके हेयर थिन हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, सो यू नो व्हाट द नेक्स्ट स्टेज कुड बी. हाँ, वाटर की जब हम बात करें, अब चेंज ऑफ वाटर मीन्स यू आर चेंजिंग योर प्लेस. व्हेन यू चेंज योर प्लेस इट मीन्स देयर इज चेंज ऑफ लाइफस्टाइल. Lifestyle change, as I told you, is again a trigger factor which could cause hair loss eventually. So change of water, yes, in a way, indirectly, it does cause hair fall. And one more factor which we are missing out here is certain scalp conditions. अब जैसे simple words में हम dandruff बोलते हैं कि people say कि मुझे बहुत dandruff की history है, and it is a very common thing that a lot of patients are facing these days कि dandruff से मेरे बाल जा रहे हैं. Yes, again, dandruff is slowly causing, we can say, damaging your scalp, जिस वजह से hair fall भी होगा. So जब आप treatment कोई पेशेंट का प्लान कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है. हम किसी एक को रूल आउट नहीं कर सकते, किसी एक को हम पकड़ के ट्रीट नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से दैट अ डिटेल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉज ऑफ हेयर फॉल बिहाइंड एंड देन यू आर गोइंग टू प्लान द ट्रीटमेंट फॉर इट. ओके, सो अगर किसी को डैंड्रफ है, डैंड्रफ हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करता है, यू सेड, बट कुछ लोगों को डैंड्रफ बैक ऑफ द हेड में भी रहता है,
बट उनके बैक ऑफ द हेड में उनको ये इशू नहीं दिखता, सिर्फ टॉप ऑफ द हेड में दिखता है। सो ये किस एक्सटेंट तक सही है कि डैंड्रफ एक ट्रिगर फैक्टर बन सकता है बट मेन फैक्टर नहीं है हेयर फॉल का? बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई सेड कि मेन फैक्टर नहीं है, दिस इज अ सेकेंडरी फैक्टर। और डैंड्रफ इट्स नॉट नेसेसरी एज यू सेड कि एक ही पर्टिकुलर रीजन में ही हमको मिलेगा स्कैल्प पे, इट कैन हैपन इन मल्टीपल प्लेसेस एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि डैंड्रफ से आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है और आप यू आर गोइंग बाल्ड। Okay. See, as I said in the start, you don't go bald immediately. There are It's a certain. progressive It is a change. progressive Yeah, change. it takes but time. again, when we know that this portion is very sensitive to DHT and other factors, so वहाँ से बाल जाना is the first thing that will happen. Eventually, and जब वहाँ आते हैं, the fall and the rate of shrinkage of the follicles at the back and the sides is not सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द टॉप ऑफ योर स्कैल्प। तो वो फेज आने तक लोग अपना ट्रीटमेंट बिगिन कर ही लेते हैं, जिस वजह से वहाँ से अगेन वी विल सी कि हेयर फॉल नहीं होता है। बट देयर आर अगेन सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक एलोपेशिया एरियाटा वी कॉल आउट, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एरिया में हेयर फॉल पैच। एग्जैक्टली। सो वो तो कोई भी पर्टिकुलरली दैट इज सीन मेजरली इन योर साइड्स एंड इन द बैक एरिया। सो जब वो होता है हमको बाल्डनेस दिखती है, बट अगेन दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर हेयर फॉल। उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। दैट इज काइंड ऑफ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे हेयर फॉल, हेयर लॉस को, एंड इसीलिए वो फैक्टर्स को कंसिडर करना अपने ट्रीटमेंट में बहुत नेसेसरी होता है। Okay, okay. So here we are going to conclude this topic, the reason behind hair fall, as Dr. Monish has explained. Majorly हमारा hormonal imbalances and genetic inheritance ज़्यादा involved है hair fall में, plus आपका lifestyle, dandruff and habits, ये सारी चीज़ें भी contribute करती हैं hair fall में, but to a very less extent. It can just trigger the hair fall little early, rather than it cannot be a cause. Cause will be always hormonal, rather than the environmental factors. So here we will be concluding our this first topic, reason behind hair fall. We will come back in the next episode with new questions and answers of those questions. Stay tuned. Thank you.